everyone, I am Justina Paris and I'll be discussing questions that are important from CLAT perspective आज के न्यूज एनालिसिस से। तो आइए शुरू करते हैं। The first question is which becomes the first state to pass a law for the welfare of platform-based gig workers। गिग वर्कर्स के लिए जो पहला स्टेट है वो है राजस्थान, लेकिन रिसेंटली एक दूसरे स्टेट ने पास किया है। तो आप मुझे बताएंगे which is that next state which is going to be the second state to have an act or a law for the gig workers in India. So use the comment section to add in your answers. The next question is with regard to कौन सा कंट्री है जो होस्ट करेगा 46 सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। कौन होस्ट कर रहा है इसको? दैट इज India. Okay, so again we've discussed this article in today's discussion. So watch that article. अगर आपने आज का the newspaper analysis नहीं देखा, पहले वो watch कर दीजिए and then you solve these questions. You will find it much interesting. Let's understand the third question of the day, which is who heads the cabinet committee on security? तो ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर। We know there are 8 cabinet committees and यहाँ पे सिर्फ 2 cabinet committees जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं है इनके पार्ट, राइट? सो विच आर दोस 2 cabinet committees where prime minister is not a part? Use the comment section again to tell me what is the answer to it. Let's understand the fourth question of the day. What is India's rank in the World Air Quality Report 2023? तो इंडिया का रैंक है 3rd और हमने ये देखा है कि बांग्लादेश इज द वर्ल्ड्स मोस्ट polluted country in the world. Second है पाकिस्तान and third है हमारा इंडिया. You can also tell me which is the most polluted city in India, which is the most polluted city in the world. ठीक है, जो इंडिया में है तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. Let's understand the next question. अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट ये कौन से साल इंट्रोड्यूस हुआ है? ये पिछले साल ही इंट्रोड्यूस हुआ था 2023 में and it has repealed the SERB, right? We have seen scientific and engineering research board जो 2008 का था ये इसने रद्द किया है. So we've understood about this in our discussion today. Which is the nodal ministry of the Smart Cities Mission? What is the answer? It is the Ministry of Housing and Urban Affairs जहाँ पे 100 cities को डेवलप करेंगे. अभी हमने इसका डेडलाइन इंक्रीज किया है. डेडलाइन कहाँ है, कब है? 2025 मार्च 31 2025 को यहाँ पे हम देखते हैं कि डेडलाइन इंक्रीज हुआ है. लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज द मोस्ट polluted country in the world? Of course, I have already answered this for you, and the answer is C, Bangladesh. So answer to this is C, Bangladesh, and ये है हमारा second most country, and this is the third most polluted country in the world. Let's understand the next question. कितनी यूनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? What is the answer? It is 42. Can you tell me which is the recent additions to the World Heritage Sites जो 2023 में add हुए? Which are the 2 sites that have been recently added to the same? Next question. The Prime Minister is not part of which of the following committees? कौन से कमिटी का पार्ट नहीं है? And that is your पार्लियामेंट्री अफेयर्स, राइट? पार्लियामेंट्री अफेयर्स में इनके पार्ट नहीं है. इनके अलावा इट इज ऑल्सो द कमिटी ऑन अकोमोडेशन. ठीक है, अकोमोडेशन का भी पार्ट नहीं है ये. सो रिमेंबर दीज 2 कैबिनेट कमिटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिगार्ड टू द हेडक्वार्टर्स ऑफ OECD. हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? पेरिस, राइट? पेरिस फ्रांस में है. आंसर टू दिस इज 10, दैट इज A. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वाज द स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च्ड? ये लॉन्च किया गया था 2015 में. वी हैव सीन द डेडलाइन अभी होगा 2025 में. सो रिमेंबर द आंसर टू दिस इज B. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which country has the highest number of UNESCO World Heritage Sites? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके पास highest number of UNESCO World Heritage Site है? What is the answer? The answer is Italy. Italy के बाद there's China of course, but Italy is the answer. About 57 or 59 World Heritage Sites that this particular country has.
तो इसका आंसर है इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हमने आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी देखा था बिकॉज ऑफ द GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI। तो यहाँ पे वी नो अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इनके फादर को कहते हैं जॉन मैकार्थी, ठीक है। एलन ट्यूरिंग जो है इट इज विद रिगार्ड टू मॉडर्न कंप्यूटिंग की बात करें हम तो वी हैव एलन ट्यूरिंग, ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। ब्लेस पास्कल इज फॉर फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी, and we have Sam Altman who is the CEO, the founder of OpenAI, जो हम ChatGPT यूज करते हैं, राइट। OpenAI कंपनी की है, CEO है वो है Sam Altman. So these are some important persons that you need to know for your general knowledge. Next is question number 14. UNESCO was established by which year? In which year? ये आंसर है 1945। UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये। हमने बहुत सारे रिपोर्ट्स देखे थे, बहुत सारी स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी कवर किया है। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो इफ यू हैवंट ऑलरेडी। विच कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ द OECD? OECD का पार्ट कौन नहीं है? तो इसका आंसर है इंडिया। इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ OECD, ठीक है। सो रिमेंबर दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर GPAI या ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हु होस्ट इट, इज होस्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? वो है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसको ऑर्गेनाइज करती है। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच सिटीज, इन द सिटीज ऑफ अ कंट्री, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस इज नॉट कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स? हमने ये डिस्कस किया था व्हाट आर द 8 कंपोनेंट्स, ऐसे 8 कंपोनेंट्स हैं। एंड रिमेंबर ऑलवेज रीड द क्वेश्चन वेल। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे 4 में से एक कंपोनेंट नहीं है। एंड वी हैव डिस्कस दिस इन टुडेज डिस्कशन। जो मीथेन है ना वो कंपोनेंट नहीं है, तो बाकी के दूसरे कंपोनेंट्स कौन से हैं ये आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू रिमेंबर ऑल दीज 8 कंपोनेंट्स। 3 तो यहाँ पे है, यू नीड टू मेंशन द रेस्ट ऑफ द 5 कंपोनेंट्स। लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स पेरिस में है। हमने अभी भी देखा था OECD का भी पेरिस में है, यूनेस्को का भी पेरिस में है। सो समथिंग डिफरेंट देन जेनेवा, हमेशा जेनेवा ही देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं। कुछ कौन से कंट्रीज? यूनेस्को एंड OECD दोनों का हेडक्वार्टर्स है पेरिस में। Let's understand the next question, which is which year was OECD established? ये कौन से साल establish हुआ था? 1961 में ये establish हुआ था। The answer to this is 19C. And the last question of the day, that is Dash launched in India in 2014 is an effective dissemination tool to inform people about the air quality. कौन सा ऐसा tool है? That is the National Air Quality Index, AQI जिसे हम बात करते हैं। So the answer to this is 20B. That's all for the day. We have understood about the 20 important questions from today's news. I hope आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये सही मिले हैं। Thank you.